Hello, hi, Sastriyakal, કેમ છો? કેમન છો? So, my dear viewers, I welcome you all to SOUMYA'S Academy. Today in this lecture we will discuss about the most interesting topic which will create interest in you to learn this, that is our PN junction. ये जो PN junction है इसको डायोड भी कहा जाता है, PN junction डायोड भी कहते हैं. Okay, so we will discuss about this PN junction today. These are the important points on which we will discuss, that is junction, depletion layer, electric field, potential barrier and net current. Okay, these are the things which we will discuss today in the PN junction. All these terms are related to PN junction. Okay, so before we start the lecture on PN junction, I would like to remind some things to you. Let's go and recall the things which we have previously learned. प्रीवियसली जो सीखे उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. पहला चीज हम लोग ये जानते हैं कि जब p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर है, दे बिहेव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है कि नहीं? क्योंकि p टाइप सेमीकंडक्टर जो बना है वो क्या है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को मिक्स करने के बाद इट वर्क्स लाइक ए p टाइप सेमीकंडक्टर, है कि नहीं? एंड बोथ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड द ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. Yes or no? So the total current inside the p-type semiconductor is 0, but the arrangement is such that it can conduct electricity or it can carry electricity. Similarly, n-type semiconductor is also same thing. We mix an intrinsic semiconductor with a pentavalent impurity, then we can get the n-type semiconductor. Yes or no? And the total current inside the n-type semiconductor is also 0. Net current inside the n-type semiconductor is also 0. Net charge is 0, but the arrangement is such that it can carry electricity. ठीक है, तो यही तक हम लोग पढ़े थे. Yes or no? And in p-type semiconductor the majority charge carriers are holes. Again, in p-type semiconductor the majority charge carriers are holes and minority charge carriers are electrons. And in n-type semiconductor the majority charge carriers are electrons and minority charge carriers are holes. ठीक है, so friends, let's begin the concept, that is PN junction. As you can see here, I have written P and N and they are forming a junction. That means what will happen if I will take a p-type semiconductor and an n-type semiconductor and I will join them, they will form a PN junction. Okay, so let us see the diagram here. This is junction, this is depletion layer, this is electric field, this is potential barrier, and this net current. ठीक है? So these are things on which we will discuss. So let us erase it. Okay. Let me draw the junction here, PN junction. This is a p-type semiconductor and here I have joined an n-type semiconductor with the p-type semiconductor. ठीक है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं PN junction? उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं. We can produce a PN junction by joining a p-type semiconductor with an n-type semiconductor. Okay, these are the things which we can we can use the p-type semiconductor and an n-type semiconductor and mix them and join them, then it will behave like a PN junction. And what is the junction? The first thing is the junction. Junction मतलब क्या होता है कि the boundary line, the boundary between the p-type semiconductor and n-type semiconductor. What is the boundary?
this line is the boundary, है कि नहीं? So this boundary is known as the junction. Yes or no? This boundary is the junction. So next move towards the p-type semiconductor. In p-type semiconductor, the holes are the majority charge carriers. So number of holes is more here. Okay. In case of p-type semiconductor, the number of holes is more. Yes or no? And as holes are the majority charge carriers, that doesn't mean that there is no electron. Electrons are also there. The electrons are the minority charge carrier. So the number of electron is less in p-type semiconductor. I am representing the electrons with dots. Okay. The electrons are represented with dots. There are few electrons present in the p-type semiconductor. And in case of n-type semiconductor, we know that the electrons are the majority charge carriers. Yes or no? Electrons are the majority charge carriers and the holes are the minority charge carrier. So the number of electron is maximum and the number of hole is minimum in n-type semiconductor. Okay. So these are the holes present in the n-type semiconductor. ठीक है. So what will happen? इसका mechanism अभी समझते हैं. What is the mechanism of p-n junction? So the time when the moment when we join the p-type semiconductor with n-type semiconductor, at that time what happens? There is a current. जब मैं एक p-type semiconductor को एक n-type semiconductor के साथ join कर देता हूँ, at that time suddenly at particular moment what happens? There is some amount of current in the junction. Junction में क्या होता है? जो junction आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को इस junction में कुछ current आपको मिलता है. So why this current is being produced and from where this current came from? ये current कहाँ से आया? ऐसे produce हुआ? ध्यान दीजिए यहाँ पे. As we know that the electron is negative in charge and the hole behaves like a positive charge. है कि नहीं? So when this electron is very close to the holes, yes or no? ये जो electron है आपका ये hole के बहुत पास है. समझ में आ रहा है क्या है? As they are very close to each other, then what will happen? The tendency of the electron is to move towards the positive charge. Again, as the hole behaves like a positive charge, so what will happen? These electrons which are nearer to the junction के पास आसपास जो electrons है, they will jump to the holes nearby from n-type semiconductor to p-type semiconductor. Yes or no? So these electrons will jump from n-type semiconductor to p-type semiconductor. n से p की तरफ वो क्या करेंगे? Jump कर जाएंगे. समझ में आ रहा है क्या? When they will jump, at that time you can see that. ध्यान दीजिए. As we know that when there is a flow of electron, there is some amount of current. जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उस समय क्या होता है कि करंट प्रोड्यूस होता है. As there some flow of electron here, so we can say that some current is produced, and the current which is produced, this is known as diffusion current. ये जो करंट आपका बना है, this current is diffusion current. इसको diffusion current क्यों कहते हैं? Because these electrons were present in the n-type semiconductor, है कि नहीं? Present in the side of n-type semiconductor and they went and diffused in the hole. ये hole में जाके क्या हो गए? Diffuse हो गए. So that's why the current which is produced here, that current is known as the diffusion current. Okay? तो diffusion current बन गया. Diffusion current बनने के बाद what will happen next क्या है? As we know, let's see. As we know that the n-type semiconductor as well as the p-type semiconductor, they both are chargeless. No charge is present here. है कि नहीं? इसमें करंट कितना है? 0 है. इसमें भी 0 है. इसमें भी चार्ज 0 है. इसमें भी चार्ज 0 है. As the charge in the negative side n-type semiconductor is 0. हम जानते हैं ना इस चीज को कि पॉजिटिव p-type semiconductor में चार्ज अपना 0 होता है and the negative side that is in n-type semiconductor the charge is also 0. है कि नहीं? But the arrangement is such that they can carry electricity. यही पढ़े थे हम लोग. तो नेट चार्ज अगर हम लोगों का n-type semiconductor पे सपोज 0 था, क्या था? 0 था हमारा चार्ज. तो चार्ज 0 था, लेकिन 0 चार्ज कब था? When this n-type semiconductor was not in contact with the p-type semiconductor. जब n-type semiconductor p-type semiconductor के कांटेक्ट में नहीं आया था, at that time the charge was 0.
but when it came in contact with the p type semiconductor, there is the flow of current, there is the flow of electron. इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होके n साइड से p साइड को चला गया है कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन चला गया है, there is a deficit in electron. समझ जाइए मेरी बात को, there is a deficit in electron. जब इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का एब्सेंट जब हो जाएगा, so definitely इलेक्ट्रॉन का कम होने से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव था, वो था तो न्यूट्रल करके रखा था उसको, है कि नहीं? न्यूट्रल था. जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नेगेटिव चार्ज चला गया वहां से, तो नेगेटिव चार्ज माइनस हो गया, वहां से निकल गया, तो नेगेटिव चार्ज कम होने से वहां पे कौन सी चार्ज डेवलप करेगा? पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब इलेक्ट्रॉन यहां से p साइड चला गया. ध्यान दीजिए मेरी बात को. सिमिलरली p टाइप सेमीकंडक्टर वाज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. p टाइप सेमीकंडक्टर में आपका न्यूट्रल था, ठीक है, बट व्हेन इट गेन्ड सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द p साइड, देयर इज सम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे ज्यादा हो गया. जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा हो गया, ज्यादा होने के कारण यहाँ पे कौन से साइड चार्ज डेवलप करेगा? नेगेटिव चार्ज विल डेवलप इन द p साइड. बट थिंग इज दैट the positive charge as well as the negative charge, at which location these charges will be developed, where the positive charge will develop and where the negative charge will develop. These two charges will develop in the region where there are absent of electron. This positive charge will develop when these electrons are absent, है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे कम थे वहां पे हम लोगों का क्या डेवलप करेगा? आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप करेगा. Okay, as the electron is more in the इस जगह में आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हो गया, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन जब आके यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे चार्ज सब क्या डिफ्यूज हो गया, डिफ्यूजन करंट बना था, है कि नहीं? तो यहाँ आने के बाद यहाँ पे भी आपका एक होल था, होल की जगह अभी यहाँ पे क्या हो गया है? इलेक्ट्रॉन आ गया. जब इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे पहुंच गया है तो यहाँ पे चार्ज सब क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. कौन सी चार्ज होगा यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज हो गया. ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो आपका एक लेयर बना है, ठीक है, ये जो आपका देखिए एक लेयर बन गया है. पहले आप लोगों का जंक्शन था, जंक्शन के बाद अभी आपका क्या हो गया है? एक लेयर बन गया है ना. जस्ट देखिए, तो यहाँ पे ये जो लेयर बना है, दिस लेयर इज नोन एज द डिप्लीशन लेयर. इसी लेयर को हम क्या कहते हैं? इसके बीच में जो लेयर आपको दिख रहा है, दिस लेयर इज नोन एज द डिप्लीशन लेयर. व्हाई दिस लेयर इज नोन एज द डिप्लीशन लेयर? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस लोकेशन दे हैव बीन डिप्लीटेड. इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से डिप्लीट हो गया है, होल भी जो यहाँ पे था वो भी डिप्लीट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आके पहुंचने के बाद वो होल थोड़ी रहेगा, वहां पे होल तो नहीं रहेगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो था वो भी यहाँ से निकल कर चला गया. समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स बोथ आर डिप्लीटेड फ्रॉम दिस रीजन, ठीक है. सो दिस रीजन इज नोन एज द डिप्लीशन लेयर. द लेयर व्हिच इज फॉर्म्ड हियर, दिस लेयर इज नोन एज द डिप्लीशन लेयर. ओके, तो डिप्लीशन लेयर बनने के बाद क्या होगा? ध्यान दीजिए, एज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, सो डेफिनेटली यहाँ पे कौन सी चार्ज बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बना, है कि नहीं? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे पहुंच गया है, सो एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, ठीक है. ये कहाँ पे डेवलप किया? ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर के साइड में ये क्या हो गया कि ये चार्ज आपका डेवलप करने लग गया, ठीक है. जो सरफेस, ये पॉजिटिव सरफेस हो गया, ये नेगेटिव सरफेस हो गया, ठीक है. ये सरफेस बनने के बाद व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? तो आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था n साइड से p साइड को, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन थे, तो ये सब n साइड से p साइड को क्यों नहीं आए? क्योंकि यहाँ भी तो होल थे ना, ये इलेक्ट्रॉन आके होल को ऑक्युपाई कर सकते थे, लेकिन ये क्यों नहीं आए? इसीलिए नहीं आए स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस those electrons have only been shifted from n side to p side. Those electrons who were very close to the junction. आपका जो जंक्शन था, जंक्शन के पास में जो इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन सब जंप करके होल के पास आए. अदर इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाए हैं, बिकॉज द डिस्टेंस ये आता तो यहाँ इसके पास आता, जो नियरर है. ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से आएगा तो किसके पास आएगा? नियरर होल के पास आएगा, जो पास में है. लेकिन उन लोगों के बीच में डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है. As the distance is more, so more energy is required for this electron to move from n side to p side, है कि नहीं? आने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है. इसीलिए वो नहीं आ पाया, क्योंकि अभी हम उसको एनर्जी नहीं दिए हैं, ठीक है ना.
तो नहीं आ पाया। जब नहीं आ पाया तो आप लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन होने के बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर से, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप किया है, ये पॉजिटिव सरफेस, ये है आपका नेगेटिव सरफेस। सो देयर विल बी ए इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर विल बी an electric field and the direction of the electric field is always from positive side to negative side. जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का डेवलप किया and it is from the positive side to the negative side, then what will happen? There will be a electric field कब प्रोड्यूस होता है? When there is a potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं रहेगा आपका तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बना है मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है यहाँ पे? एक पोटेंशियल डिफरेंस है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि एक पोटेंशियल आपका हाई पोटेंशियल होगा, एक होगा आपका लोअर पोटेंशियल। ये सुन, एक होगा आपका हायर पोटेंशियल, दूसरा होगा आपका लोअर पोटेंशियल। सो ये जो पॉजिटिव साइड जो आपको दिख रहा है, दिस पॉजिटिव इज द हायर पोटेंशियल and in the negative side this is the lower potential, this is the lower potential and ये इनके बीच में जो डिफरेंस रह गया है, ठीक है, दिस इज नोन एज द पोटेंशियल बैरियर। दोनों पोटेंशियल के बीच में जो गैप है, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल के बीच में जो है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर उसको कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? potential barrier. The difference between the higher potential and lower potential, that is the potential barrier. क्यों इसको barrier क्यों कहते हैं? This is the potential barrier. Why this is known as the? हमको उसको as usual हिसाब से हम उसको क्या कह सकते थे? पोटेंशियल डिफरेंस। बट यहाँ पे हम उसको पोटेंशियल बैरियर कह रहे हैं। Why do you call it as potential barrier? This is known as potential barrier because it stands like a barrier for the flow of current. ये करंट का फ्लो में क्या हो रहा है? एक बैरियर बन के खड़ा हो रहा है, एक ऑब्स्टेकल बन के खड़ा हो रहा है। कैसा ऑब्स्टेकल बन रहा है? अभी देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या फिर होल मूव करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया कि नहीं किया? सपोज आई विल टॉक अबाउट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेरा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? होल्स है। और होल को मूव करने के लिए, होल मूव करेगा तो किसके पास मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन के पास मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज के पास मूव करेगा। एंड नेगेटिव चार्ज आपका है कहां पे? एन टाइप सेमीकंडक्टर में है। ये सुन लो, तो ये होल एन के पास मूव करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पास मूव करेगा। ठीक है, मूव करने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? होल तो एक्चुअली मूव करता नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है कि नहीं? फिर भी अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, जाने के लिए उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है? क्योंकि पहले उसको, ये पॉजिटिव है, होल का चार्ज क्या है? प्लस है, और यहाँ पे प्लस चार्ज है। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, अपोज करेंगे। दैट्स व्हाई दिस होल कैन नॉट मूव फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। ठीक है, मूव नहीं कर पाया। एंड इफ नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन हैज टू मूव फ्रॉम, as its tendency is to move towards the positive charge and hole behaves like a positive charge, है कि नहीं? So electron has to move from n side to p side, ये hole के पास जाना चाहिए, and the charge of the electron is negative and the potential barrier which is created here, its charge is positive in the negative in this surface, जो कि p side में है कि नहीं? तो ये चार्ज हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सो दिस इलेक्ट्रॉन आल्सो कैन नॉट मूव टुवर्ड्स दैट साइड। समझ में आएगा? सो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि करंट का फ्लो तब होता है when there is flow of majority charge carriers inside the semiconductor। एक सेमीकंडक्टर के अंदर करंट तब फ्लो करता है जब उसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करते हैं। बट यहाँ पे आपका पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन्स है एंड एन टाइप में आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, सॉरी पी टाइप में आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है एंड इन एन टाइप द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड बोथ
holes as well as electrons are not able to move, ये अभी मूव नहीं कर पा रहे हैं. Why they are not able to move? Due to this potential barrier created in the depletion layer. ये depletion layer में जो आपका potential difference create हो गया है, due to that potential difference only the electrons as well as the holes are not able to move. ये अभी मूव नहीं कर पा रहे हैं. समझ में आया क्या? So there is no current in the semiconductor. इसीलिए no current in the सेमीकंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं कर पाया ड्यू टू दिस पोटेंशियल बैरियर. ठीक है, फिर भी स्टिल वी कैन सी दैट एस, ठीक है, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, मान गए कि करंट फ्लो नहीं होगा, बट ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव नहीं कर पाएंगे, दैट डजंट मीन दैट द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स व्हिच आर प्रेजेंट दे कैन नॉट मूव. तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी तो मूव कर सकते हैं ना. देखिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को थोड़ा एनालिसिस करते हैं. यहाँ पे inside the p-type semiconductor the electrons are the minority charge carriers, yes or no, and their tendency is to move towards the positive side because the charge of an electron is negative and its tendency is always to move towards the positive charge. ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड easily this electron can move from p side to n side. आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये भी तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये उसको अपोज करना चाहिए क्योंकि ये साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप किया है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव है, ये उसको अपोज करना चाहिए. माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल नॉट अपोज बिकॉज़ यहाँ पे जो भी फोर्स काम कर रहा है दैट इज ओनली बिकॉज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो यही फार्मूला E = F/q है कि नहीं. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कुछ फोर्स बन रहा है एंड दैट फोर्स इज एबल टू हेल्प दिस इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम p साइड टू n साइड. तो ये क्या करेगा, इजीली ये जो इलेक्ट्रॉन था ये पॉजिटिव के पास यहाँ आ जाएगा. समझ में आएगा. सिमिलरली n साइड में जितना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे दैट इज होल्स जितने थे वो भी इजीली होल का चार्ज पॉजिटिव है और इस साइड में क्या है चार्ज, पोटेंशियल बैरियर के अपोजिट साइड में क्या है, इसका चार्ज नेगेटिव है. तो होल का चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, तो होल इजीली इस साइड में आ जाएगा. समझ में आएगा. तो इसी तरह क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ करंट विल डेवलप, कुछ अमाउंट का करंट बुक डेवलप करेगा. क्यों डेवलप किया, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स दैट इज होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स. होल एंड इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये दोनों आपका चार्ज कैरियर्स है, ये दोनों मूव करने के चलते चार्ज डेवलप हुआ. तो चार्ज कैरी हुआ मतलब कि कुछ अमाउंट का करंट बनेगा. लेकिन ये करंट कब तक बनेगा, ये तब तक बनेगा जब तक ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अपने अपनी जगह पे जाकर सेटल नहीं हो जाते हैं. ठीक है, जितना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स था सब मूव कर जाएंगे n साइड पे, मतलब कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था ये सब यहाँ पॉजिटिव के पास आकर सेटल हो जाएंगे और ये जो होल जितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था ये उस तरफ चले जाके सेटल हो जाएंगे. जब ये सब इस जगह छोड़ के जब जाकर सेटल हो जाएंगे, जब तक सेटल हो जाएंगे तब तक करंट फ्लो करेगा. सेटल होने के बाद करंट का फ्लो बंद हो जाएगा. समझ में आएगा ना, क्योंकि ये आपका ट्रेडिशनल करंट नहीं है कि नहीं, ये आपका ट्रेडिशनल करंट नहीं है. यहाँ पे करंट कब फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा या फिर चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे. चार्ज कैरियर का फ्लो होना बंद हो गया दैट मींस करंट का फ्लो भी बंद है. ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि तो नेट करंट, हम जो नेट करंट का बात कर रहे थे, तो नेट करंट इनसाइड द पीएन जंक्शन I = 0. ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक. फिर से एक बार हम उसको पूरा डिटेल समझ लेते हैं. ठीक है, जब एक मिनट देख लीजिए डिटेल, आपको एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं. पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन a p-type semiconductor comes in contact with a n-type semiconductor and the point at which both the p-type semiconductor and n-type semiconductor join, that boundary line is known as the junction. है कि नहीं. And in the junction the electrons which are close, the electrons as well as holes which are very close to one another, very close to the junction, they attract each other. That's why what happens, the electron from n side jump to the p side. Jump करने के बाद what happens, there a depletion layer develops
है कि नहीं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डिप्लीशन लेयर कहते हैं, वो डेवलप होता है ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन से आपका इलेक्ट्रॉन एंड होल गायब हो जाते हैं, तो उसी जगह पर आपका क्या बनता है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर बनने के बाद आपका क्या है एन टाइप का नेट चार्ज आपका जीरो रहता है एंड पी टाइप का भी नेट चार्ज आपका जीरो रहता है, ठीक है, नेट चार्ज उसका जीरो रहता है। एंड इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद एन टाइप में कौन सा चार्ज डेवलप करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, एंड पी टाइप में होल्स सब डिप्लीट मतलब कि डिप्लीट होने के बाद यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आके पहुंच गया है, इसीलिए इस साइड में आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने के बाद ये जो सरफेस है आपका ये एक चार्ज सरफेस जैसा बिहेव किया, ठीक है। बिहेव करने से क्या हुआ कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो an electric field develops from positive charge to negative charge, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज ए फोर्स, है कि नहीं, E is equal to F by Q। जो फोर्स जो डेवलप करता है दैट फोर्स डज नॉट परमिट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स टू मूव, है कि नहीं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डेवलप करता है क्या, मूव कर पाता है क्या, नहीं कर पाता है ना, क्योंकि ये P का जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसका चार्ज पॉजिटिव है, ये अगर N साइड आके मूव करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे रिपेल करेंगे, दैट्स व्हाई द होल कैन नॉट मूव। सिमिलरली द इलेक्ट्रॉन आल्सो कैन नॉट मूव from n side to p side because इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल बैरियर है यहाँ पे भी इसका चार्ज क्या है नेगेटिव है एक साइड, सो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, इसलिए ये भी मूव नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई दिस डिप्लीशन लेयर बिहेव्स लाइक ए पोटेंशियल बैरियर। क्या बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है, ये पोटेंशियल बैरियर जैसा बिहेव करता है, ये करंट को फ्लो होने नहीं देता है। दैट्स व्हाई द नेट करंट इनसाइड द PN junction is zero. Some amount of current flows when the minority charge carriers move from P side to N side and from N side to P side. But it is up to for some extent. ये तब तक फ्लो होता है करंट जब तक ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर सेटल ना हो जाए। जब सेटल हो जाएगी तब आपका करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। So friends, so students, this was the mechanism of PN junction diode. यहाँ पे हम लोगों का नेट करंट अपना क्या हो गया है, जीरो हो गया है, ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं जा पाया, मैं आपको बोला हूँ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास डिस्टेंस ज्यादा हो गया है मूव करने के लिए, उसके साथ साथ क्या है इस इलेक्ट्रॉन के पास उतना भी एनर्जी नहीं है कि ये डिप्लीशन लेयर को जंप करके इसके पास चला जाएगा, है कि नहीं, इतना एनर्जी उसके पास नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि हम ये वाला इलेक्ट्रॉन को कैसे उस साइड को जंप कराएंगे, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज योर बायसिंग, ठीक है। वी विल डिस्कस दिस बायसिंग इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू।